بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آپ سب کا کیا حال ہے؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ پیارے بچوں، کوئی بچہ مجھے بتائے گا کہ کل ہم نے کون سا سبق پڑھا تھا؟ جی ہاں، ہم نے سبق قائد اعظم رحمت اللہ کی بلند خوانی کی تھی اور اس سبق کے مشقی سوالات بھی کیے ہیں۔ بچوں، آپ سب بچوں کو یہ سبق اچھے سے سمجھ آ گیا ہے؟ شاباش۔ پیارے بچوں، آج میں آپ کو تفہیمی عبارت کا مفہوم یعنی تفہیم کا مطلب بتاؤں گی کہ تفہیم کیا ہوتی ہے۔ بچوں، آپ میری بات کو غور سے سنیں۔ تفہیم فہم سے نکلا ہے، جس کا مطلب غور و فکر، سمجھنا، جاننا اور سوجھ بوجھ، یعنی کسی بھی پیراگراف کو غور سے پڑھنے، سمجھنے اور غور و فکر کرنے کے بعد دیے گئے سوالات کے جوابات دینا تفہیم کہلاتا ہے۔ تفہیم کا سوال حل کرنے سے پہلے بچوں، کچھ باتیں میں آپ کو بتانا چاہوں گی۔ آپ نے یہ باتیں یاد رکھنی ہیں۔ نمبر 1، دیے گئے پیراگراف کو غور سے پڑھنا ہے۔ نمبر 2، دیے گئے پیراگراف کو پڑھنے کے بعد دیے گئے سوالات کی نشاندہی کرنی ہے۔ تمام سوالات کے جوابات پیراگراف میں موجود ہیں۔ جواب لکھتے ہوئے جواب کو پہلے انڈر لائن کریں تاکہ پیراگراف میں آپ کو جواب آسانی سے نظر آئے، اور جس سوال کا جواب ہو اس سوال کا نمبر جواب کے اوپر لکھیں تاکہ پیراگراف میں آپ کو آسانی سے نظر آئے۔ ایک اور چیز، تفہیم کا پیراگراف آپ کو کہیں سے بھی آ سکتا ہے اور ہر بار ایک نیا پیراگراف دیا جاتا ہے، اس لیے آپ کو اس کے حل کرنے کے طریقے کو سمجھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے بچوں؟ اب ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ پیارے بچوں، ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے تفہیمی عبارت کہہ سکتے ہیں۔ یہ کسی بھی سبق سے ایک پیراگراف لے کر بھی دی جا سکتی ہے۔ ہماری آج کی تفہیم کا عنوان ہے یوم آزادی۔ کیا ہے؟ یوم آزادی، یعنی کہ آزادی کا دن۔ آزادی کا دن کون سا ہے بچوں؟ ہماری آزادی کا دن 14 اگست۔ کون سا ہے؟ 14 اگست۔ ابھی آپ نے پچھلے دنوں یہ سبق پڑھا ہے، سبق قائد اعظم، اس میں آپ نے پاکستان کی یوم آزادی کی تاریخ پڑھی تھی نا؟ جی، 14 اگست۔ اور پاکستان کب آزاد ہوا تھا؟ کب قائم ہوا؟ 14 اگست 1947 کو۔ ہم اس دن کو بڑی دھوم دھام سے مناتے ہیں۔ جی بچوں، تفہیمی عبارت، یہ آپ کی ورک شیٹ ہے اور آپ نے اس کو پہلے تفہیم کو غور سے پڑھنا ہے۔ سوال نمبر 1، درج ذیل عبارت کو غور سے پڑھیں اور نیچے دیے گئے سوالات کے جوابات لکھیں۔ پاکستان، پڑھیں میرے ساتھ ساتھ بچوں، پاکستان ہمارا پیارا ملک ہے۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے قائد اعظم رحمت اللہ اور ان کے ساتھیوں نے بہت سی مشکلات کا سامنا کیا۔ میں نے بچوں یہ ابھی پچھلے دنوں آپ کو سبق پڑھایا ہے، تو یہ پیراگراف بھی اس سے ملتا جلتا ہے۔ کئی سالوں کی محنت اور قربانیوں کے بعد آخر آزادی ملی۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان قائم ہوا۔
कौन सी तारीख को पाकिस्तान कायम हुआ है? 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान कायम हुआ है। इस कामयाबी की खुशी में हर साल 14 अगस्त के दिन को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। पूरे मुल्क को पाकिस्तानी झंडियों से सजाते हैं। प्यारे बच्चों, हमारे मुल्क की जब ये सालगिरह का दिन आता है, जैसा आपकी सालगिरह होती है, आप भी अपनी सालगिरह को बड़ी खुशी से धूमधाम से मनाते हैं। इसी तरह हमारे मुल्क की भी ये 14 अगस्त जो तारीख है, ये सालगिरह का दिन है। यानी कि इस दिन में, इस तारीख में हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान बना था, हमें आज़ादी मिली थी इस दिन को। तो इस दिन को हम हमेशा याद रखते हैं और हम इस दिन को भी बड़ी खुशी से मनाते हैं। इस दिन को जोश व खरोश से मनाते हैं और पूरे मुल्क को पाकिस्तानी झंडियों से सजाते हैं। मुल्क भर के तमाम इदारों में कौमी परचम लहराए जाते हैं। तमाम दरसगाहों में तकरीरी मुकाबले और मिली नगमों के प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते हैं। यानी कि तमाम दरसगाहों से मुराद स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में यौम आज़ादी के मुतालिक तकरीरें की जाती हैं, मिली नगमे पढ़े जाते हैं, मुल्क के लिए कौमी तराना पढ़ा जाता है और इस दिन को तमाम इदारों में ये प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते हैं। सब पाकिस्तानी इस दिन मुल्क की सलामती के लिए दुआएं मांगते हैं। हम सब इस दिन में अपने मुल्क के लिए दुआ मांगते हैं कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क को सलामत रख और तमाम मुसलमानों में अमन और सलामती कायम रहे। आमीन। आगे बच्चों, इस तफहीमी इबारत को पढ़ने के बाद कुछ सवाल दिए गए हैं, जिनको आपने सवालों को गौर से पढ़ना है और तफहीम के अंदर से इन सवालों के जवाबात ढूंढने हैं। सवाल नंबर 1 है, पाकिस्तान कब कायम हुआ? जी बच्चों, अब आए तफहीम की तरफ। हम देखते हैं जी बच्चों, पाकिस्तान हमारा प्यारा मुल्क है। इसको हासिल करने के लिए कायद आज़म रहमतुल्लाह और इनके साथियों ने बहुत सी मुश्किलात का सामना किया। अब हम इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे और जहाँ पे पूछे गए सवाल का जवाब आएगा, हमने वहाँ रुक कर उसको अंडरलाइन लाइन को करना है और उसके ऊपर सवाल नंबर 1 लिखना है। कई सालों की मेहनत और कुर्बानियों के बाद आखिर आज़ादी मिली। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान कायम हुआ। प्यारे बच्चों, ये सवाल नंबर 1 का जवाब है। जी हाँ, अब आपने इसको अंडरलाइन करना है और इसके ऊपर नंबर 1 लिखना है। सवाल नंबर 1 है कि पाकिस्तान कब कायम हुआ? तो पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को कायम हुआ। अब आपने यहाँ पर सवाल के नीचे जवाब लिखना है। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान कायम हुआ। शाबाश। अब सवाल नंबर 2 है, हम 14 अगस्त का दिन कैसे मनाते हैं? जी बच्चों, अब हम पैराग्राफ को दोबारा देखेंगे कि इस सवाल का जवाब हमें कौन सी लाइन से मिलेगा। अब हम अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। इस कामयाबी की खुशी में हर साल 14 अगस्त के दिन को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। जी हाँ, यहाँ पे बच्चों सवाल नंबर 2 का जवाब हमें मिल गया है। अब आपने इसको 14 अगस्त के दिन को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, इसको अंडरलाइन करके नंबर 2 लिखना है और फिर वहां से देखकर यहाँ पर आपने जवाब लिखना है। जी, हम 14 अगस्त के दिन को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। शाबाश। जी बच्चों, अब हम तफहीम का सवाल नंबर 3 करेंगे।
सवाल नंबर 3 है, पैराग्राफ को गौर से पढ़ें और नीचे दिए गए वाहिद के जमा पैराग्राफ में से तलाश करके लिखें। वाहिद जमा, नंबर 1 साथी, नंबर 2 मुश्किल, नंबर 3 झंडी, नंबर 4 दुआ। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 3 का मतलब है कि आपने इन वाहिद अल्फाज के जमा पैराग्राफ को पढ़कर उसके अंदर से ढूंढने हैं। जैसा नंबर 1 लफ्ज़ है साथी, तो आपने साथी की जमा ढूंढनी है पैराग्राफ के अंदर से। जहाँ भी आपको लफ्ज़ साथी की जमा मिलेगा, आपने उस लफ्ज़ को पहले अंडरलाइन करना है और फिर यहाँ पर जमा के नीचे लाकर लिखना है। प्यारे बच्चों, ये सवाल नंबर 3 आपकी एक्टिविटी है। ये आपकी ज़हानत की जांच करने के लिए है। इससे हमने अंदाज़ा करना है कि आपको इस सबक की कहाँ तक समझ आई है और आप खुद से लिखने के किस हद तक काबिल हुए हैं। आपने इन वाहिद के जमा खुद से बनाने हैं, ठीक है। ये आपके घर का काम है और आपने इस काम को अपनी नोटबुक पर लिखना और याद करना है। प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको आज का सबक पसंद आया होगा और सबको अच्छे से समझ भी आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।